Hi guys, I am Roshan Nandurkar and you are watching my YouTube channel Java and Python Geek. If you still not subscribe our YouTube channel, I will request you to please click on subscribe button and turn on the notification so you never miss out on our important tutorials guys. Okay, now let's start today's content guys. So today we have to start, today we have to cover networking related content. Okay, so networking or we can say guys socket programming. Okay, what we have to say socket programming. So for that I will create new project. हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. आई विल क्लिक ऑन जावा, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट. ओके, एंड देन आई विल से सॉकेट प्रोग्रामिंग गाइस. ओके, in socket programming concept we have already covered some theoretical content. We have already covered there. So which theoretical content we have covered there? Previously we have covered what is networking. We have covered there. Okay, so now if you don't cover this, okay, so first of all I will request you, okay, I will suggest you to please go through this. So networking we have covered as a theoretically. Okay, then after we discuss what is host. Okay, what is host, or we can say in the beginning we can say what is server. Okay, networking, then server. So what is server guys? Server is the software program. Okay, server is not a machine. Okay, server we will not say that is a machine. Server is a software program which may accept request and gives response. What is server? Server we will say it may be software program, okay, or software which may accept request and gives response guys. So now then after what we covered, okay, then after what we covered client. Okay, so what is client? Once again you will say, okay, wrongly you will say guys, client will be machine. So client is not a machine. We will say client is a software program which always send request to the server. Client is again software program. Okay, then after fourth one we will say what is host. Okay, what is host? So host is a machine. Okay, where server program is installed. Okay, जहाँ पे ये सर्वर प्रोग्राम इंस्टॉल रहेगा, so that machine we will say host machine. Okay, and then the fifth one we will say what is guest. Okay, so once again we will say guest is a machine where this client program is installed. Okay, so guest एक machine रहेगी where client program will be installed. Then after sixth term we will say IP address. Okay, so we already knew that guys. So whenever we want to communicate one machine to another machine, okay, and that machine identification number, okay, identification number is known as a IP address guys. Okay, any machine in the network we know with the IP address guys. Okay, so IP address having the 4 bytes of value, so which may vary from 0 to 255. Like for example, okay, in our network, let's say we have a one machine 192.168, okay, dot 100 dot, okay, 10. So now this is the first byte, this is the second byte, this is the fourth byte, and this is the third byte, and this is the fourth byte. And each byte can vary 0 to 255. 0 to 255. Nowadays you can see 6 byte of IP address guys. Okay, nowadays you can see 6 byte of IP address. Okay, but this is the fourth byte of IP address guys. Okay, then after we will say port number. Okay, port number. So port number is a program identification number guys. Port number we can say it is a program identification number. Program identification number is called port number. Like for example, let's say we have a machine. Okay, and we have one more machine. Okay, we have a machine and
this is one more machine. So we will say this one will be the M1. Okay, machine 1. And the IP address of this machine, let's say 192 dot, okay, 192.168 dot, okay, 100 dot, like for example, 10 is the IP address of this machine, guys. Okay, 10 is the IP address of this machine. So M1 having the IP address, or M1 got the IP address 192.168.100.10. And then on this machine we have two program. Okay, we have two program, guys. This is the program 1 and this is the program 2. This is the program 1 and this is the program 2. Okay, and this machine want to communicate with this machine. Okay, this machine want to communicate with this machine, guys. Okay, so now let's say the IP address of this machine, this is the M2, this will be the M2. We can say 192 dot, the IP address of this machine 192.168 dot, okay, 100 dot, like for example 20. Okay, 100.20. Now this machine M1, M2 want to communicate with M1. Okay, M2, okay, this machine want to communicate, with this machine, guys. So now then on this machine, let's say we have two program. Okay, we have two program which may accept request, which may accept request. Okay, and we will say request, this will be the request. Okay, this will be the request, and then we will say, then this program going to give response. So we will say response. Okay, going to give response. Okay, so now request and response, guys. Okay, so we are receiving request and then this program going to give response to this machine, So again we will say on this machine there will be one program, okay, which is going to communicate with this machine. Okay, and on M1, okay, in M1 we have two program, like the port number of this program, like for example 101. 101 is the port number. 101 is the port number. Okay, port number, ये पोर्ट नंबर है. ओके, ये प्रोग्राम का पोर्ट नंबर है. और एक दूसरा प्रोग्राम है, मान लो कि हमारे पास में, और ये प्रोग्राम जो है इसका पोर्ट नंबर जो है 201 है. 201 है. So now let me change the font. So now we have two program. Okay, in M1 we have two program. So 101 and 201. So जब भी 101 को रिक्वेस्ट अगर आया, M2 से रिक्वेस्ट अगर आया, ओके, M2 से रिक्वेस्ट अगर आया, सो 101 नंबर का प्रोग्राम जो है, ये 101 नंबर का प्रोग्राम क्या कर रहा है आपको, कि आपको गुड मॉर्निंग प्रिंट करके दे रहा है. गुड मॉर्निंग. ओके, गुड मॉर्निंग. ओके, गुड मॉर्निंग. एंड जो भी ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम जो बोलेंगे हम, ये वाले प्रोग्राम को, ये M1 वाला प्रोग्राम हम बोलेंगे इसे गुड मॉर्निंग. और ये गुड मॉर्निंग, लेट मी चेंज द फॉन्ट. सो ये गुड मॉर्निंग प्रिंट करके दे रहा है. विच वन प्रोग्राम, 101 नंबर का प्रोग्राम आपको गुड मॉर्निंग प्रिंट करके दे रहा है. ओके, अलॉन्ग विद गुड मॉर्निंग, तो विच एवर नेम इट विल रिसीव, लाइक फॉर एग्जांपल जय इज पासिंग, ओके, द रिक्वेस्ट, लाइक ये क्लाइंट प्रोग्राम है, वी विल से दिस विल बी द क्लाइंट प्रोग्राम. ये क्लाइंट प्रोग्राम है. ओके, क्लाइंट प्रोग्राम कौन से मशीन के अंदर में इंस्टॉल है, M2 के अंदर में. सो M2 वी विल से गेस्ट मशीन एंड M1 विल बी द होस्ट मशीन. सो ये क्लाइंट जो है, ओके, ये यानी M2 जो है M1 को रिक्वेस्ट पास कर रहा है. तो M1 के पास में टू प्रोग्राम है, कि एक है 101, तो आपको प्रिंट करके दे रहा है गुड मॉर्निंग जय. और सेकंड वन प्रोग्राम है, वी हैव वन मोर प्रोग्राम, सेकंड वन प्रोग्राम, ओके, विच इज गोइंग टू प्रिंट गुड इवनिंग. ओके, गुड इवनिंग जय. सो अगर मान लो कि M2 को लगा कि हमें गुड मॉर्निंग प्रिंट करना है, ओके, ये प्रोग्राम जो है, ये वाला प्रोग्राम है, 201 नंबर का प्रोग्राम जो है गुड इवनिंग जय करके प्रिंट करके दे रहा है. तो मान लो कि ये मशीन को अगर लगा, ओके, ये मशीन को अगर लगा कि नहीं,
हमें जो है हमें क्या प्रिंट करना है, गुड मॉर्निंग जय प्रिंट करना है, गुड मॉर्निंग जय प्रिंट करना है। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, रिक्वेस्ट पास करेगा कुछ इस तरीके से। ओके, इट विल पास रिक्वेस्ट समथिंग लाइक दिस गाइस। ओके, ये प्रोग्राम अगर लग रहा है कि ये M2 जो है रिक्वेस्ट कुछ पास करेगा कुछ इस तरीके से। M2 मतलब कौन से नंबर की मशीन, 192.168.100.20 उसका आईपी एड्रेस है M2 का। तो M2 रिक्वेस्ट पास करेगा, यानी उसके लिए सॉकेट क्रिएट करेगा, उसके लिए सॉकेट क्रिएट करेगा न्यू। ओके, सॉकेट नाम का जावा डॉट नेट पैकेज के अंदर में सॉकेट क्लास है, जावा के अंदर में जावा डॉट नेट नाम का पैकेज है और उसके अंदर में एक सॉकेट क्लास है। सो by using that socket class it will create one socket, it will create a socket. ओके, मैं थोड़ा सा वन सेकेंड फॉन्ट चेंज कर देता हूँ इसका। सो नाउ सॉकेट क्रिएट करेगा, सॉकेट कैसे क्रिएट करेगा, सॉकेट विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस। ओके, इट विल से कि 192.168 डॉट, ओके 192.168.100.10 वाली मशीन को, ओके 10 वाली मशीन को रिक्वेस्ट पास करना है। ओके, एंड वो मशीन पे दो प्रोग्राम है जो कि रिक्वेस्ट रिसीव कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग जय और एक प्रिंट करेगा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जय। सो जय विल बी द नेम विच वी विल पास फ्रॉम क्लाइंट मशीन। तो ये क्या करेगा, 101 रिक्वेस्ट अगर मान लो कि 101 को पास अगर करना है तो ये सॉकेट क्रिएट करते टाइम क्या करेगा, पोर्ट नंबर लिखेगा उसका। ओके, इट मीन्स टू से कि आपको आपको यहां से रिक्वेस्ट जो जाएगी ये वाले प्रोग्राम को रिक्वेस्ट जाएगी, गेटिंग गाइस। ओके, यहाँ पे ये प्रोग्राम को रिक्वेस्ट जाएगी। अगर मान लो कि ये मशीन को अगर लग रहा है कि इसको रिक्वेस्ट पास करना है तो इसके लिए सॉकेट अगर क्रिएट कर रहा है तो सॉकेट कैसे क्रिएट करेगा, इट विल क्रिएट सॉकेट। ओके सॉकेट, ओके सॉकेट, ओके एंड देन कैसे क्रिएट करेगा, 192.168 डॉट, ओके देन 100.10, ओके 100.10 एंड द पोर्ट नंबर, कौन से पोर्ट नंबर, गुड इवनिंग, कौन सा पोर्ट नंबर, कौन सा प्रोग्राम जो है वो गुड इवनिंग प्रिंट कर दे रहा है आपको। सो आपके लिए जो प्रोग्राम गुड इवनिंग प्रिंट करके दे रहा है, ओके वो 201 नंबर का प्रोग्राम है। ओके, सो वी विल से कि ये 201 101 क्या है, ये 201 हो गया, ये 101 हो गया, ये क्या है, ये पोर्ट नंबर है, ये प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी M1 के अंदर में से दो प्रोग्राम है, ओके कि जो आपकी रिक्वेस्ट क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और आपको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ओके, सो इनको बोलते हैं यहाँ पे पोर्ट नंबर। ये जो हो गया ये आईपी एड्रेस हो गया गाइस। सो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे करना है कि हमें क्या करना है, ओके कि सर्वर प्रोग्राम जो रहेगा, सर्वर प्रोग्राम क्या करेगा, क्लाइंट प्रोग्राम से आई हुई रिक्वेस्ट जो है, ओके सर्वर प्रोग्राम क्या करेगा, रिसीव करेगा और जो भी मैसेज आ रहा है, ओके और वो मैसेज क्या करेगा, प्रिंट करेगा। हम राइट नाउ अभी हम जो भी मैसेज आ रहा है हम पहले क्लाइंट कंसोल पे प्रिंट करेंगे एंड देन आफ्टर हम ट्राई करेंगे कि सेम प्रोग्राम जो है वो फ्रेम प्रोग्रामिंग में ले, कि ताकि हम चैटिंग प्रोग्राम जो है चैटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो हम बना सके। यानी थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे कि चैटिंग से रिलेटेड कुछ हम कंसेप्ट कवर करें, उसमें हम थ्रेडिंग कंसेप्ट भी यूज करेंगे गाइस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो होप सो आप लोगों को पोर्ट नंबर समझ में आया होगा, आईपी एड्रेस भी समझ में आया होगा। ओके होस्ट, ओके हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो है हमारे लिए होस्ट है, ये हम इसकी बात करें, ये हमारे लिए होस्ट मशीन है। ओके, ये हमारे लिए होस्ट मशीन है, वो ये हमारे लिए गेस्ट मशीन है, जहाँ पे कि हमारा क्लाइंट प्रोग्राम जो है सॉकेट बना के क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। ओके, तो सॉकेट बनाने के लिए ऐसे जावा और कुछ क्लासेस प्रोवाइड करता है, वो देखेंगे हम। तो ये हो गया आपका होस्ट, ओके गेस्ट। आईपी एड्रेस आपको होप से समझ में आया होगा, क्लाइंट सर्वर ये सब कंसेप्ट आपको थियोरेटिकली आपको समझ में आए होंगे एंड द सेम कंसेप्ट वी हैव टू कवर प्रैक्टिकली। सो फॉर दैट ओके आई विल क्लिक ऑन सोर्स पैकेजेस। ओके, सोर्स पैकेजेस पे जाएंगे और एक सबसे पहले हम क्या करते कि सर्वर लिखते, ओके सर्वर प्रोग्राम लिखते। तो सर्वर वी विल से माई सर्वर वन नाम का एक हम प्रोग्राम लिखते हैं, माई सर्वर वन। ओके, और सर्वर बनाने के लिए ओके हमने लिखे यहाँ पे माई सर्वर वन एंड नाउ वी विल से psvm। ओके, वी विल से psvm गाइस एंड यहाँ पे हमें ये प्रोग्राम को सॉकेट पोर्ट नंबर असाइन करना पड़ेगा। पोर्ट नंबर असाइन करने के लिए एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू कि जावा डॉट नेट पैकेज आपको एक सॉकेट नाम का क्लास प्रोवाइड करता है। ओके, सो वी विल असाइन पोर्ट नंबर। ओके, पोर्ट नंबर हम असाइन कर रहे हैं इसको। तो उसके लिए
हम यहाँ पे नॉट सॉकेट एक पोर्ट नंबर असाइन करने के लिए एक सर्वर सॉकेट, सॉरी गाइस, सर्वर सॉकेट नाम का क्लास प्रोवाइड करता है। तो ये सर्वर सॉकेट प्रोग्राम यूज करके मैं इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर दे रहा हूँ गाइस। ओके, सो लाइक मैंने बोला कि ये प्रोग्राम का आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है 101 है। एंड नाउ इट कैन जनरेट एन एक्सेप्शन। ओके, इट कैन थ्रो एन एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शन रिलेटेड अगर आपको कंटेंट अगर देखना होगा तो आप मेरा जो क्वेश्चन एंड आंसर वाला सीरीज जो है आप वो देख सकते हैं। ओके, जहाँ पे कि इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स वहाँ पे है। तो java.net पैकेज उसके लिए कौन सा क्लास प्रोवाइड करता है? सर्वर सॉकेट पोर्ट नंबर। ओके, पोर्ट नंबर प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन नंबर। एंड नाउ I will write this okay by using try and catch. Okay, so I will write try and catch. So now try and catch हमने लिखा है यहाँ पे। okay, and then okay, थोड़ा सा इसे सिस्टमेटिक कर देते, अरेंज कर देते। एंड वी विल से कि एक्सेप्शन अगर आया तो ई प्रिंट करो, ई एक्स प्रिंट करो। ओके, सो मैंने ई को ई एक्स चेंज कर दिया। एंड नाउ आई विल रिसीव सर्वर सॉकेट एंड वेरिएबल नेम आई विल से एसएस। ओके, रेफरेंस नेम आई विल से एसएस। सो नाउ ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। मैं बोलूंगा फॉर एग्जांपल एस आउट। ओके, सो पोर्ट नंबर लाइक मैं बोलूंगा यहाँ पे कि सर्वर वन ओके, रिक्वेस्ट रिसीव्ड, रिक्वेस्ट रिसीव्ड, और सर्वर वन ओके, वेटिंग, वेटिंग करके मैं एक थोड़ा सा एक मैसेज डाल देता यहाँ पे। तो ये इसके पास में सर्वर सॉकेट के पास में एक मेथड है एक्सेप्ट मेथड। एक्सेप्ट नाम की मेथड जो है ये क्या करती रहेगी? वेट करती रहेगी। ओके, विल वेट ओके टू रिसीव रिक्वेस्ट। ओके, विल वेट टू रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट प्रोग्राम। ओके, ये वेट करती रहेगी। कौन सी मेथड? एक्सेप्ट मेथड। और ये एक्सेप्ट मेथड अभी हम पहले एक काम करते, इसको हम थोड़ा सा ट्राई करते। ओके, दैट यू विल कम्स टू नो कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे करके। सो मैं बोलूंगा यहाँ पे सर्वर वन ओके, रिसीव्ड रिक्वेस्ट। ओके, ये थोड़ा सा हम कंसोल पे मैसेज प्रिंट कर देते हैं। ये हो गया हमारा सर्वर वन। एक हमने यहाँ पे सेम प्रोग्राम को कॉपी करा एंड देन आई विल से पेस्ट। ओके, तो इसको हम माई सर्वर टू बोलते गाइस। ओके, सो आई विल से दिस प्रोग्राम विल बी द माई सर्वर टू। और इसका पोर्ट नंबर जो है हम ये 201 कर देते हैं। ओके, 201। ओके, सो दिस पोर्ट नंबर में वैरी फ्रॉम 1 to 65,535 गाइस। ओके, सो कुछ ऑलरेडी रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर है जो कि आप डेटाबेस प्रोग्रामिंग में यूज करते गाइस। तो जैसे कि एक आपने अगर देखे होंगे तो एक डेटाबेस कनेक्टिविटी में एक 3306 नंबर का जो पोर्ट नंबर जो है ये माइस्क्यूएल का पोर्ट नंबर है। ओके, माइस्क्यूएल का ओके पोर्ट नंबर है। ओके, एक आपका पोर्ट नंबर जो है 80। ओके, 80 पोर्ट नंबर जो है ये ऑलरेडी रिजर्व पोर्ट नंबर है। और ये आपका अपाचे का पोर्ट नंबर है, अपाचे। ओके, टॉमकैट जो पोर्ट नंबर जो यूज करता है डिफॉल्ट उसका पोर्ट नंबर जो है ये टॉमकैट का है, टॉमकैट पोर्ट नंबर। ओके, वैसे याहू का है। ओके, तो बहुत सारे ऐसे पोर्ट नंबर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आप चाहो तो गूगल पे आप उसकी लिस्ट देख सकते हो गाइस। तो दिस आर दी सम रिजर्व पोर्ट नंबर गाइस। ओके, सो पोर्ट नंबर इज द प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन नंबर गाइस। ओके, सो नाउ देन हमने यहाँ पे एक माई सर्वर वन एंड माई सर्वर टू ऐसे हमने दो प्रोग्राम लिखे गाइस। सो हमने यहाँ पे मैं यहाँ ये सेकंड सर्वर प्रोग्राम को हमने पोर्ट नंबर दिया 201। मैं बोलूंगा सर्वर टू वेटिंग, सर्वर वन की जगह पे मैं सर्वर टू बोलूंगा। तो जब भी इसे रिक्वेस्ट आई तो ये मैसेज प्रिंट कर रहा है सर्वर वन वेटिंग। जब भी इसे रिक्वेस्ट आई तो ये बोल रहा है सर्वर टू वेटिंग, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो अभी हम क्लाइंट प्रोग्राम लिखते गए, क्लाइंट जो कि रिक्वेस्ट पास करेगा। सो नाउ यू कैन सी माय क्लाइंट, माय क्लाइंट वन। ओके, माय क्लाइंट वन। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं psvm, psvm एंड देन अभी हम बनाते हैं यहाँ पे क्लाइंट। तो क्लाइंट सॉकेट बनाते गए, सॉकेट। ओके, सो हमें ये दो सर्वर प्रोग्राम है, एक सर्वर वन और एक दूसरा सर्वर टू, इसे रिक्वेस्ट पास करना है। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते कि हमें अगर सॉकेट अगर बनाना है तो यहाँ पे हमें एक सॉकेट नाम का क्लास यूज करना है। ओके, आईपी एड्रेस के साथ में हमें पोर्ट नंबर लिखना है। तो हम यहाँ पे एक सॉकेट बना रहे हैं। ओके, सॉकेट बना रहे हैं। ओके,
सॉकेट बनाने के लिए जावा डॉट नेट पैकेज एक सॉकेट नाम का क्लास प्रोवाइड करता है। तो मैंने ऊपर में इंपोर्ट कर दी है। ओके, कंट्रोल स्पेस से ये इंपोर्ट हो रहा है। तो सॉकेट बनाने के लिए हमें फर्स्ट पैरामीटर में लिखना आईपी एड्रेस। तो हमारे मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, तो ये हम चेक करते हैं। हमें वैसे तो लोकल मशीन है, तो लोकल मशीन पे अगर आपको लोकल सर्वर और क्लाइंट अगर सेम मशीन पे अगर है, तो आप ये वाला आईपी एड्रेस यूज कर सकते हो। ओके, जो कि आपको ओएस असाइन करती है। सो 127.0.0.1 ये ओके, आप आईपी एड्रेस यूज कर सकते हो। बट अगर आप मान लो कि सेम राउटर यूज कर रहे हो, सेम नेटवर्क अगर आप यूज कर रहे हो, तो आप आपका आईपी एड्रेस पता कर सकते हो। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता, कमांड प्रॉम्प्ट से पता करता कि आईपी एड्रेस क्या है ये मशीन का। ओके, मैं बोलूंगा आईपी कॉन्फिग नाम की कमांड है, दैट यू विल कम्स टू नो द आईपी एड्रेस ऑफ योर मशीन। नाउ यू विल सी, ये आपका ओके, ये आपके मशीन का आईपी एड्रेस है। सो द आईपी एड्रेस ऑफ दिस मशीन इज 192.168.101.4। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास में दो मशीन है और एक मशीन से दूसरे मशीन में अगर आपको मैसेज पास करना है, ओके, दोनों की सीरीज मैच हो रही है। मान लो कि ये मशीन का आईपी एड्रेस 192.168.101.4 है, दूसरी मशीन का आईपी एड्रेस जो है वो 192.168.101.5 है। तो आप .5 से क्या करोगे, .4 को रिक्वेस्ट भेजोगे। ओके, तो अभी हमें .4 को रिक्वेस्ट भेजना है। तो .4 को रिक्वेस्ट भेजना है, तो हम यहाँ पे कौन सा आईपी एड्रेस लिखेंगे, 192.168.101 ओके, सॉरी 192.168 ओके 101 आईपी एड्रेस ओके 4, ये आईपी एड्रेस है। और हमें प्रोग्राम नंबर 101 को रिक्वेस्ट पास करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ओके 101 लिख दें। एंड नाउ इट विल रिटर्न द सॉकेट I will say S. Okay, and it can generate an exception. Once again, I will surround this statement with try and catch. Okay, so हम यहाँ पे try and catch लिख लेते हैं और इसे जनरलाइज एक्सेप्शन में डाल देते हैं। ओके, एक्सेप्शन लिख देते हैं। तो नाउ हम एक्सेप्शन अगर आया तो एक्सेप्शन के लिए हम यहाँ पे EX प्रिंट कर देते, इसे हम EX में कन्वर्ट कर देते वेरिएबल ने। सो नाउ आई वांट टू पास रिक्वेस्ट टू दिस मशीन, ये मशीन को मेरे को रिक्वेस्ट पास करना है और वो मशीन पे 101 नंबर का प्रोग्राम है। सो आई विल से s dot okay, s dot there is a one method s dot get आउटपुट स्ट्रीम। आई वांट टू पास रिक्वेस्ट, तो मेरे को मैसेज पास करना है, तो मैंने यहाँ पे बोला गेट आउटपुट स्ट्रीम। ओके, सो उसके पास में मेथड है गेट आउटपुट स्ट्रीम। गेट आउटपुट स्ट्रीम मेथड है जो कि क्या रिटर्न करेगी, आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी आपके लिए। ओके, सो हम इसे रिसीव कर लेते हैं, असाइन रिटर्न वैल्यू टू न्यू वेरिएबल। सो ये रिटर्न करेगा आपका आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। सो नाउ इसे हम आउट करके लिख देते हैं, एंड देन आई विल से आउट डॉट ओके राइट मेथड इज देयर। ओके, आप चाहो तो एक बाइट लिख भेज सकते हो, आप चाहो तो मल्टीपल बाइट भेज सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मेरे को बाइट भेजना है। बाइट भेजना मतलब क्या भेजना है मेरे को, लाइक हमें यहाँ पे एक मैसेज भेजना है। ओके, सो हेलो गुड मॉर्निंग। ओके, हेलो गुड मॉर्निंग, और लाइक यू कैन से लाइक हमने भेजा यहाँ पे रोशन नांदुरकर। ओके, लाइक ये मेरे को भेजना है, ये मैसेज मेरे को भेजना है। ओके, हमें ये भेजना है, तो ये हमने मैसेज लिख दिया एंड वी विल से मैसेज डॉट गेट बाइट्स गाइस। ओके, तो ये मैसेज से हमने बाइट निकाल दिए और मैं क्या कर रहा हूँ, आउटपुट स्ट्रीम पे राइट कर रहा हूँ, यानी ये पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट चली जाएगी। ओके, ये मशीन पे ये पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट चली जाएंगे। एंड आई विल से आउट डॉट क्लोज। ओके, आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज कर दिए एंड एस डॉट क्लोज गाइस। ओके, आउट डॉट क्लोज एंड एस डॉट क्लोज। तो ये हो गया, आपने ये मशीन से क्या भेज दिया, आपने मैसेज भेज दिए। सो मैं यहाँ पे बोलूंगा एस आउट ओके क्लाइंट सेंड ओके क्लाइंट सेंड ओके मैसेज ओके क्लाइंट सेंड मैसेज। अब ये सर्वर की तरफ आ रहा है। ओके, तो आपको करना क्या है कि ये रिसीव तो हम बाद में करते, पहले हम इसे रन करके देखते गए। ओके, सो तो आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि मैसेज कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले सर्वर मस्ट बी रेडी। सो सर्वर को रेडी करते, नाउ यू विल सी गाइस सर्वर आपका रेडी है। ओके, ये सर्वर 1 रेडी है, सर्वर 1 वेटिंग है, सर्वर 1 रिक्वेस्ट वेटिंग।
एंड मैं सर्वर 2 पे भी इसको भी मैं रेडी कर देता गाइस। ओके, सो ये दोनों सर्वर ओके आजू बाजू में ये वेटिंग कर रहे हैं। तो मैंने क्लाइंट 1 से रिक्वेस्ट किसे भेजा है, मैंने किसे भेजा, 101 को भेजा है। तो 101 को भेजा मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी। आप थोड़ा सा नोट करिएगा। तो मैंने यहाँ से रन फाइल कर दिए। ओके, नाउ क्लाइंट सेंट मैसेज, ये इसके कंसोल पे ये आया और ये हमारा सर्वर 1 वाला है। तो नाउ यू कैन सी गाइस सर्वर रिसीव्ड रिक्वेस्ट, सर्वर रिसीव्ड रिक्वेस्ट, ये आपको मैसेज आ रहा है। तो वो जो मैसेज जो है मैसेज आया ओके। और अगर मान लो कि 102 अगर हमने यहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज कर दिए और मैंने अभी अगर यहाँ पे रन फाइल, आप अभी आप पहले आप देख लो कि सेकंड सर्वर जो है ओके, सेकंड ओके पोर्ट नंबर जो है ये अभी भी वेट कर रहा है। बिकॉज ये जो एक्सेप्ट मेथड है ना, एक्सेप्ट मेथड वेट कर रही है कि रिक्वेस्ट आई करके, आए करके। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिए, क्लाइंट को रन कर दिए, क्लाइंट को रन कर दिए एंड कनेक्शन रिफ्यूज करके समथिंग आई एम गेटिंग मैसेज। तो बिकॉज बिकॉज कुछ सर्वर ओके इसका पोर्ट नंबर है 201 एंड माय क्लाइंट, अच्छा 201 ओके, आई नीड टू से 201 गाइस। सो नाउ रन फाइल एंड नाउ यू विल सी कि आपका सर्वर 2 भी जो है वो रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, रिक्वेस्ट रिसीव कर सकते हैं। तो लेकिन रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद में जो आया हुआ मैसेज हमें रिसीव करना है, तो इसलिए एक्सेप्ट मेथड वेट कर रही है। और एक्सेप्ट मेथड क्या करती है, जो सॉकेट बनाया था वो सॉकेट इधर में रिसीव करेगी, मैं बोलूंगा सॉकेट एस ओके, सॉकेट वो सॉकेट जो उधर से भेज बनाया था ओके और वो भेजा था, सॉकेट यहाँ पे क्या कर दी, उसने रिसीव कर दी, ये सॉकेट ऊपर में इंपोर्ट हुआ गाइस। एंड देन ओके मैं इसे थोड़ा सा कमेंट कर देता एंड देन आई विल से एस डॉट, अभी मेरे को अभी हमें क्या करना है, ये सॉकेट से इनपुट करना है। तो इसलिए हमने गेट इनपुट स्ट्रीम, वहां से हमें क्लाइंट से भेजना था इसलिए हमने सॉकेट से क्या निकाला, गेट आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ पे हमें रिसीव करना है तो इसलिए गेट इनपुट स्ट्रीम एंड आई विल से असाइन रिटर्न वैल्यू ओके इन एंड वी विल से इन डॉट ओके एक नंबर ऑफ बाइट्स आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बाइट का एक एरे बना देते ओके। सो मैं बोलूंगा बाइट बी ओके, बाइट न्यू बाइट मे बी 100 बाइट्स 200 बाइट आ सकते, तो जो आपको साइज देना है आप साइज आप असाइन कर सकते हो। वैसे इसके पास में एक मेथड भी है अवेलेबल, जितने एस डॉट अवेलेबल आप बोल सकते हो, इन डॉट अवेलेबल आप बोल सकते हो, ये मेथड है। जितने बाइट आ रहे हैं वो भी बाइट आप फिक्स क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा अवेलेबल मेथड कभी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए हमने इसका साइज जो है फिक्स कर दिया। और ये बी के अंदर में हमें रीड करना है तो इसलिए इन डॉट मैं बोलूंगा रीड ओके, और रीड मेथड बोल रही है कि हमें बाइट का एरे दे दो, बाइट का एरे दे दो। तो हमने बी उसे असाइन कर दिया। तो ये क्या करेगा, जो भी नेटवर्क पे बाइट आ रहे हो बाइट बी के अंदर में पुट कर देगा एंड देन ये बाइट को हम क्या करते, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते। तो इसके लिए स्ट्रिंग क्लास एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है, वो बोलता है बाइट का एरे दे दो, हम आपको उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे ओके मैसेज एक वेरिएबल लिख देते हैं। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग क्लास का पैरामीटर कंस्ट्रक्टर जो भी बाइट आ रहे हैं वो बाइट को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्लाइंट रिसीव्ड ओके, और यहाँ पे हम लिखते मैसेज ओके। मे बी उसके अंदर में कुछ स्पेसेस हो सकती है ओके, लेफ्ट मोस्ट प्रीफिक्स में और पोस्टफिक्स में, इसलिए हम उसे ट्रिम कर देते हैं ओके। तो इसे ट्रिम करके हम वापस से उसे ओके मैसेज वेरिएबल के अंदर में पुट कर देते गाइस। एंड नाउ देन आफ्टर we will close the input stream and we will close the socket also and we will also close the server socket also. So now in this way हम ये ट्राई कर सकते कि मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आई विल रन दिस गाइस, आई विल रन दिस ओके, रन फाइल। नाउ यू विल सी कि आपका सर्वर 1 वेटिंग कर रहा है एंड देन क्लाइंट 1 के अंदर में जाते और हमारा पोर्ट नंबर जो है ये 101 है ओके, जो हमने सर्वर 1 रन करा है उसका पोर्ट नंबर 101 है। एंड राइट क्लिक एंड रन फाइल गाइस ओके, क्लाइंट सेंट मैसेज एंड देन नाउ यू कैन सी गाइस क्लाइंट रिसीव्ड रोशन नांदुरकर, यानी आपने वन मशीन टू अनदर मशीन क्या कर दिया गाइस कि आपने मैसेज रिसीव करे। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं
कि मैसेज हम सेंड कर सकते क्लाइंट टू सर्वर। सो ये हो गया, हमने सॉकेट और सर्वर सॉकेट प्रोग्राम हमने यहाँ पे यूज करा। तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर में क्या करते हैं कि हम ये सेम प्रोग्राम जो है ये फ्रेम पे हम ऐड करके देखते हैं, जहाँ पे कि हम चार्टिंग से रिलेटेड कुछ हम एक ट्राई करते कि हम उससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन हम विंडो एप्लीकेशन हम वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, यानी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सेम प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम यूज करेंगे, ओके, जिससे हमारा एक चार्टिंग एप्लीकेशन बन जाएगा। ओके, और वहाँ पे हम थ्रेडिंग भी यूज कर सकते हैं। ओके, थ्रेडिंग हमें यूज करना ही रहेगा वहाँ पे। तो आपका थोड़ा सा आपको थ्रेडिंग से रिलेटेड जो डाउट जो है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज हम ये वीडियो के अंदर में यहाँ पे रुकते। सो thanks for watching. Okay, if you found this video helpful, so don't forget to click on like and share it with your friends. Okay, and keep learning, keep coding, keep exploring, and I will see you in the next video, guys. Okay, till then, happy coding, guys. Okay, thank you, guys.